अच्छा।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। This is Gauss divergence theorem, equally important. What is the statement? See, if in exam they may ask you to state Gauss divergence theorem, then this is the statement: double integration over S f dot n cap ds is equal to triple integration over V divergence of f dv. The relation between double integral and triple integral is called Gauss divergence theorem. So one question we are verifying this relation, this is statement. Verify Gauss divergence theorem for f value is there. Taken over the cube, very important point. Cube is there. Bounded by x is equal to 0, x is equal to a, y is equal to 0, y is equal to a, and z is equal to 0, z is equal to a. So first of all, always we are taking LHS is equal to RHS, but especially in Gauss divergence theorem, we take RHS here. RHS, divergence of f dv. First we find out divergence of f. Curl f is del dot f, or del cross f. Divergence of f means del dot f. And we know that the value of del I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. This one we have to do the dot product with x cube I plus y cube j. एक सैंपल क्वेश्चन कर रहे हैं अपनी, एफ वैल्यू कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। एक्स क्यूब आई वाई क्यूब जे प्लस जेड क्यूब के का कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर आई वाई स्क्वायर आई एंड जेड स्क्वायर जे, वाई स्क्वायर जे एंड जेड स्क्वायर के, वो आप करना है। I'll give you that question. I dot I is 1. So what's left? Dou by dou x of x cube is left. Plus j dot j is 1. So what's left? Dou by dou y of y cube left. Plus k dot k is 1. So what's left? Dou by dou z of z cube is left. Which is equal to x cube differentiation is 3x square. Y cube differentiation is 3y square because we are doing partially. And z cube differentiation is 3z square. Now what to do? We have to take 3 common. That is x square plus y square plus z square. This is the value of divergence of f. We got it, divergence of f value. Now this one we have to integrate triple type, triple integration. And what are the limits? A question में इसके limits भी है. We need not to worry about the limits. X is equal to 0 to a, y is equal to 0 to a, z is equal to 0 to a is the limits. So therefore, triple integration over v, divergence of f dv is equals to the limits of this volume. X is equal to 0 to a, y is equal to 0 to a, z is equal to 0 to a, and divergence of f value is 3 times. I want to take 3 outside here. X square plus y square plus z square. dv means all the 3 variables, dx, dy, and dz. Now we have to integrate this function, but we have a limits. All the limits are the same. Your choice is there. You can differentiate with respect to any variable. अपने काम करेंगे, we have to mention that what you are doing. With respect to z, we are integrating. With respect to z. So we have to take the z value inside the brackets, and later on we integrate y and x. X is equal to 0 to a, y is equal to 0 to a. We have to open a bracket which indicates that we are doing with respect to z. Z is equal to 0 to a. We have getting here is x square plus y square plus z square.
since we are integrating with respect to z, z will come inside, dx and dy will go outside. Now, this x square with respect to z, x square z, y square with respect to z, y square z, z square with respect to z, z cube by 3. So इसके आंसर्स पहले लिखता हूं मैं. X square with respect to z, x square z, y square with respect to z, y square z, z square with respect to z, z cube by 3. N plus 1 by n plus 1 is a formula. And here we have to put their values, limits 0 to a. Dx dy as it is. This side will also be as it is. X is 0 to a. Y is also 0 to a. Upper limit minus lower limit. जहां पर भी z है हमें लगाइए a. This is 3 times. X is equal to 0 to a. Y is equal to 0 to a. Now what happened here is z की प्लेस पे a लगाएंगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस a क्यूब बाई 3. एक काम करेंगे, we have to differentiate with respect to y also, second variable. So y will come inside the bracket and dx outside. Now same value with respect to y we have to, इसमें y नहीं है देखो, ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन with respect to y अगर करे तो आंसर आता ax स्क्वायर y plus a as it is, y square with respect to y, y cube by 3 plus इसमें भी a नहीं है, y नहीं है, तो a cube by 3 into y. That limits are again 0 to a and there dx, and this is 3 and 0 to a as it is. Upper limit minus lower limit. अभी रखेंगे y की प्लेस पे a. So a square x square, a power 3 into a power 4 by 3, a power 4 by 3. So that's the next step. This is the value of triple integration over f, divergence of f dv. We are doing this right hand side is equal to 3, of course will be there outside. X is equal to 0 to a also as it is. Upper limit we are substituting. जहां पर भी y है वहां पर लगा रहे a. So this is a square x square. और पेज पे आ गया क्या? सेकंड पेज पे लिखना है ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर v divergence of f dv is equals to 3 times x varies from 0 to a. Now substituting, we are getting a square x square plus a power 4 by 3 plus a power 4 by 3. Lower limit में तो कैसा भी forget about it because it is anyhow 0. Now finally with respect to x, 3 outside, a square as it is, x square का इंटीग्रेशन x क्यूब by 3. इसमें x नहीं है, with respect to x करे तो x ऐड हो जाता है, मतलब कैसा a power 4 by 3 into x plus a power 4 by 3 into x, and their limits are 0 to a. So what happened here is 3 outside only. Again x की प्लेस पे लगाएंगे a power 3 into a power 5 by 3 plus x की प्लेस पे a power 5 by 3, x की प्लेस पे a power 5 by 3. Lower limit anyhow 0. So this 3 times a power 5 by 3, how many times are there? 3 times are there. और LCM भी ले सकता है, LCM ले ली तो 3 a power 5. This one, this cancel. Got our answer is very important. That's what I'm writing. 3 a power 5 is your answer of triple integration over v
डाइवर्जेंस ऑफ एफ डीबी का आंसर, यानी कि आरएचएस का आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको वो फिगर ड्रॉ करना पड़ता है क्यूब का। कल मैं आपको एक पीडीएफ भेजा है, आप देखे या नहीं देखे आई डोंट नो, बट मैं एक बार क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो माशाल्लाह परफेक्ट, दिस इज द क्यूब। आरएचएस ड्रॉ, सॉरी एलएचएस करने के लिए अपने को क्यूब की जरूरत है। सो दैट इज दिस पार्ट, दिस पार्ट इज योर z axis, this part is your x axis, this part is your y axis, this is of course your origin. This point will be taken at any point P. Now how to take the coordinates? You see, a point lies on x axis, so A, point lies on y axis, that is B, z axis का point C, A B C हो गया। Now D, xy plane पे D, yz plane पर E, zx plane पर F, xy yz zx. So now look at that, there are 6 faces in this cube. ये फ्रंट साइड वाला एक्स वाई प्लेन का है, ये सॉरी एक्स वाई प्लेन ये है ओ ए बी डी एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है जिसके अंदर ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन है। ऑलरेडी कल की पीडीएफ में मैं आपको भिजाया था, इसमें z इज इक्वल टू 0 होता और एन कैप की वैल्यू, एन कैप की वैल्यू माइनस के कैप है। ओके, सिमिलरली इसके ऊपर जो है यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 है, एक्स वाई प्लेन है बोलो, ये है x इज इक्वल टू z इज इक्वल टू इसका पैरेलल पैरेलल प्लेन। इसमें ये एक्स वाई के पैरेलल वाला है प्लेन, z की वैल्यू तो 0 है, एन कैप की वैल्यू प्लस के कैप है। ठीक है, और उसके बाद अब नेक्स्ट वाई जेड, एक्स एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई जेड वाला प्लेन, कौन सा वाई जेड वाला प्लेन, ओ जेड ई बी, वाई जेड वाला प्लेन होता और उसके पैरेलल में ये है। तो जब अपन एलएचएस करेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ऑलरेडी वो पीडीएफ में मैं बहुत डिटेल से बताया हूँ, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ डॉट एन कैप की वैल्यू, एफ डॉट एन कैप डी एस, देर आर 6 फेसेस, सो डबल इंटीग्रेशन ओवर S1 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर S2 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर S3 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर S4 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर S5 प्लस डबल इंटीग्रेशन ओवर S6। तो पूरे के पूरे 6 फेसेस में आपको इसको ऐड करना है, ये पूरे 6 आंसर्स को, एंड वी हैव टू शो द आंसर इज अगेन 3a पावर 5। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ S1 से, S1 वाले फेज से स्टार्ट कर, तो जरा अच्छे से देख लेना है। तो डबल इंटीग्रेशन ओवर S1 एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर S1 एफ डॉट एन कैप, एफ इज व्हाट, एक्स क्यूब आई जो आपका क्वेश्चन है, प्लस वाई क्यूब जे प्लस जेड क्यूब के डॉट, अब एन कैप की वैल्यू क्या बोला हमें, माइनस के कैप लेना है, माइनस के कैप, और डीएस की वैल्यू
एक्स वाई प्लेन पे है ना, तो dx dy बाई मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप की वैल्यू माइनस के कैप डॉट प्लस के कैप। पीडीएफ में देखिए, कल की पीडीएफ देखिए एक बार, देखिए आप कल का पीडीएफ। S1 Yes, sir. k dot k is 1, only these two are possible, see the product of these two only possible, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का पॉसिबल है खाली, k डॉट k 1 होता, k डॉट j 0 होता, k डॉट i 0, तो ये दोनों ही डॉट प्रोडक्ट के काबिल है, बाकी के कोई भी नहीं है। तो ये आता k डॉट k 1, वी गेट हियर z क्यूब, आप करेंगे, we take here z cube dx dy by ये k डॉट k 1 and modulus of minus 1 is plus 1, so denominator भी इसका नहीं आता, but I want to say the answer of this one is 0. Can you tell me why I am writing 0? Can you tell me why I am writing 0? Please, this is very important point. Why? Because ये अपन कहां पर कर रहे हैं, ये पूरा काम अपन एक्स वाई प्लेन पे कर रहे हैं, राइट? एक्स वाई प्लेन पे क्या हो जाता, जेड का वैल्यू 0 हो जाता, दैट्स व्हाट, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो भी आपने को जेड वैल्यू 0, तो फर्स्ट फेज का जो आंसर आया था वो आया है 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड फेज का करेंगे अभी, सेकेंड फेज को करें, डबल इंटीग्रेशन Okay. ऑफ एच टू एफ डॉट एन कैप डी एस, एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर एच टू एफ डॉट एन कैप, so we have to do it that x cube I cap plus y cube j cap plus z cube k cap, z cube k cap डॉट, इसके पैरेलल वाले प्लेन में इन कैप की वैल्यू प्लस के कैप है, और dx dy बाई, अब इसको अगर आप लिखना चाह रहे तो लिख लो k डॉट k, कैसा भी वन हो जाएगा। नाउ अगेन द प्रोडक्ट ऑफ these two is only possible, k dot k is 1, but here on parallel to xy प्लेन कर रहे हैं, z की वैल्यू a है, तो इसका जो आंसर आता वो दो लिमिट्स लिखना x और y के, x वेरीज फ्रॉम 0 टू a, y वेरीज फ्रॉम 0 टू a, सॉरी y है ये, y वेरीज फ्रॉम 0 टू a, और z क्यूब मतलब z वैल्यू तो a है, तो a क्यूब dx इंटू dy, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट पेज, किसकी वैल्यू कर रहे हैं अपन, डबल इंटीग्रेशन हो रहा है टू की वैल्यू कर रहे हैं अपन, एफ डॉट इन कैप ds इज इक्वल टू a cube is a constant, take it out, x varies from 0 to a, अब अपन y को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बल्कि y के लिए एक ब्रैकेट लगा देंगे, y is equal to 0 to a, और nothing is left, 1 dy, bracket close into dx, so this is a cube as it is, x is equal to 0 to a, 1 dy is y, limits are 0 to a into dx, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब a माइनस 0 वो भी बाहर निकाल देंगे, तो a पावर 4 हो जाएगा, 0 to a 1 dx, this is a power 4, 1 dx is x, लिमिट 0 to a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इसका आंसर आ जाएगा a पावर 5, किसका आंसर, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस टू एफ डॉट एन कैप का ds का आंसर, दो फेसेस को सॉल्व करें आप, नाउ फेस 3 लेंगे, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस थ्री, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, देखो ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पता नहीं क्या ही को नहीं पूछ रहा हूँ ना, ये बड़ा है बल्कि नहीं पूछ रहा है कि क्या है, इंपॉर्टेंट तो है मगर एग्जाम में आ रहा नहीं बहुत दिनों से, एक्स क्यूब वाई कैप, ये पूरे क्वेश्चन यही साइज के रहते हैं, वाई क्यूब जे कैप प्लस जेड क्यूब के कैप, अब ये जो फेस ले रहे हैं अपन,
वाई जेड प्लेन वाला ले। वाई जेड प्लेन पे एन कैप की वैल्यू है माइनस जे कैप, और ds की वैल्यू है dy dz डिवाइडेड बाई एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप डॉट प्लस जे कैप। तो ये अगर आप चाहे तो जरा सा मेंशन कर लो, ये कहां पर आप ले रहे हैं। ऑन वाई जेड प्लेन, on yz plane where x is equal to 0. Now look at yz plane ना, तो आई आता, सॉरी यहाँ पर आई आता, सॉरी ये छोटी सी गलती हो गई, आई आता ये भी पूरे का पूरा आई। तो ये आई, 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 ये डॉट। सो नाउ दिस ओनली वी कैन मल्टीप्लाई, आई को सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई डॉट आई इज वन, बट एक्स जीरो रहने से इसको सॉल्व नहीं करना, आंसर जीरो कर देना। ठीक है, ऑड फेसेस जो है वो जीरो हो जाते हैं, इवन फेसेस में आंसर आ जाता। आपको आंसर क्या लाना है, 3a⁴ लाना है। ऑड फेसेस में आंसर a⁴, 4 का करे तो a⁴, 6 का करे तो a⁴, टोटल कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते, 3 हो जाते। दैट्स योर आंसर, बट डोंट गेस इट लाइक दैट, करके बताएंगे अपन। एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर S4 एक्स क्यूब बाई कैप, क्योंकि जो फेस पे अपने को आंसर आ रहा है ना, उसको अपन सिमिलरली नया लिखना है, प्लस जेड क्यूब। सिमिलरली लिखने वाले केसेस अलग होते हैं। डॉट एन कैप की वैल्यू यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस आई कैप, और दिस इज डी वाई डी जेड बाई आई डॉट आई, आई डॉट आई। ऊपर वाले केस में माइनस आई प्लस आई कैसा भी वनिश हो जाता है वो पूरे जाके। और यहाँ पर क्या कंडीशन है भाई, द रिस्ट्रिक्शंस विल बी पैरेलल वाई जेड प्लेन है, एक जेड एक्स की वैल्यू ए है, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी, तो ए क्यूब आउटसाइड ले लेंगे, ए क्यूब आउटसाइड ले लेंगे, और वाई जेड की लिमिट लिख, वाई इज इक्वल टू 0 टू ए, जेड इज इक्वल टू 0 टू ए। ठीक है ना, डी वाई डी जेड। देखो इसको कैसे सॉल्व करते, वैसे सॉल्व करेंगे। ए क्यूब एज इट इज आउटसाइड, दिस इज 0 टू ए, इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू जेड, 1 डी जेड एंड आउटसाइड डी वाई। दिस इज डबल इंटीग्रेशन ओवर S4 एफ डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल टू ए क्यूब y is equal to 0 to a, 1 dz is z, limit 0 to a, and this is the upper limit minus lower limit. A minus 0 is a, into a power 3 is a power 4. Total y is equal to 0 to a, 1 dy. This is a power 4, 1 dy is y, limit 0 to a. Upper limit minus lower limit a power 5. This is the answer of double integration over S4 f dot n cap ds. तो फेस 4 भी हो गया, नाउ 5 6 और दो फेसेस है। डबल इंटीग्रेशन ओवर S5 f dot n cap ds is equals to डबल इंटीग्रेशन ओवर S5, f की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी है, एक्स क्यूब ऑफ 5 प्लस वाई क्यूब ऑफ j प्लस जेड क्यूब ऑफ k डॉट ये वाले फेस में
एन कैप की वैल्यू माइनस जे कैप एंड दिस इज डी एक्स डी जेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस जे कैप डॉट प्लस जे कैप। ना ऑलरेडी आप चाहे तो इधर मेंशन कर लो कि वो आप कौन सा वाला फेस कर रहे हो, ऑन एग्जैक्ट प्लेन चल रहा है। y is equal to 0 and these two product are only possible, j का प्रोडक्ट j के साथ, and no need to solve this part as I said already, कैसा भी जीरो ही हो जाएगा y वैल्यू जीरो होने से। now s6 that one we have to do it, s6 f dot n cap ds is equals to double integration over s6, this is x cube y plus y cube j plus z cube k, and in this case here dot with j value is n cap value is plus j cap dx dz divided by j cap dot j cap, और यहाँ पर कंपल्सरी मेंशन करना पड़ेगा आपको, दैट इज y वी आर टेकिंग y वैल्यू इज दिस इज a क्यूब, और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल होता है यहाँ पर भी। सो a क्यूब आउटसाइड लाइक ऑड फेसेस में x is equal to 0 to a, y is equal to 0 not y, that 0 to a dy सॉरी dx dz, पहले विथ रेस्पेक्ट टू z करो, ठीक है ना। आप चाहे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं a पावर 5 इसका भी आंसर आता हूँ, क्योंकि 1 3 में बता चुके हैं आप ये। यहाँ पे लिखना है ऐसा, सेम एज s4, पहले ऐसा बोले s2 एंड s4, s2 और s4 का आंसर यही है ना, तो भी राइट। चलिए अभी फाइनली कंक्लूजन में आ रहे हैं। नाउ LHS we are doing, LHS is double integration over s f dot n cap ds, which is a combination of s1 plus s2 plus s3 plus s4 plus s5 plus s6, s1 का आंसर 0, s2 का आंसर a पावर 5, s3 का आंसर 0, s4 का आंसर a पावर 5, s5 का आंसर 0, s6 का आंसर a पावर 5। So when I am adding all these values, what answer I am getting? I am getting this is 3a to the power of 5 is the answer of double integration over s f dot n cap ds. So now what do you say? LHS is equal to RHS. LHS का भी आंसर इतना ही आया था, hence Green's theorem verify, sorry, Gauss divergence, Gauss divergence theorem वेरीफाई। कल जो हमने आपको नोट्स भेजा है ना, उसके अंदर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर एक और क्वेश्चन है, और वहां पर एफ की वैल्यू क्या है देखो, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप है, वो आप एक कर लो। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत बड़ा रहने से एग्जाम में मैक्सिमम नहीं आ रहा, बट अपने सिलेबस में था तो मैं पढ़ा दिया आपको। तो विद दिस वी हैव टू स्टॉप, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है।
ठीक है, तो ये थर्ड यूनिट भी आपका खत्म हो गया है। कल की क्लास में इंशाल्लाह विल गो फॉर फोर्थ यूनिट। ठीक है, ओके। यस। तो आपके मम्मी को रिमाइंड करिए 15 के बाद, बोले थे कुछ कमिटमेंट। जी ओके। ओके, राइट।